Namaste. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. All right. So in today's session, basically, I will be covering the symbols and their meanings. So आज के सेशन में मैं कवर करूंगी हिंदुइज्म में जो सिंबल्स हैं और उनके अर्थ यानी कि उनके मीनिंग्स। तो हिंदुइज्म जो है वो एक बहुत ही रिच रिलीजन है, राइट। हमारे बहुत ज्यादा रिच रिच कल्चर है, रिच ट्रेडिशंस हैं, रिच कस्टम्स हैं, रिच रिचुअल्स हैं। सब कुछ ही इतना ज्यादा रिच और इंट्रिकेट है, डिटेल्ड है, इतना सुंदर है, सौंदर्य से भरा हुआ है। तो उस विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगी आज। Hinduism is rich in symbols and imagery, which basically sort of carries deep spiritual meanings that reflect the religion's teachings and philosophies. So, basically, religion जो है वो carry करता है deep spiritual मीनिंग्स यानी कि अर्थ, जो एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं एक रिलीजन का टीचिंग या फिलॉसफी क्या है उस रिलीजन की। सो वो उस एस्पेक्ट में बात करते हैं, उस एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कैसे उस विषय में बात या वार्तालाप हो रहा है। यदि हम बात करें ओम की, यदि हम बात करें ओम की, when we chant Om, right? OM. वैसे तो आप अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में if we tend to write down Om, we will write it down like OM or AUM if we are talking in terms of syllables, right? So otherwise the entire word is OM, right? In English if we talk about. But अगर हम इसको ओम के साउंड्स को देखें, ठीक है, तो वो ए अ उ म ऐसे बनता है, यानी कि AUM से बनता है, ठीक है। इसका जो इस ओम शब्द का जो अर्थ है यानी कि जो मीनिंग है वो है कि ओम इज द मोस्ट sacred sound. It's a sound. These are not just alphabets, right? When we are talking about Om, it's just not a word. It's just not an alphabet. It's just not made up of alphabet or words, or of it's a pure sound. It's a sound of the universe. Yes, you heard me right. It's the sound of the universe, of this magnificent universe, right? So Hinduism, represents the essence of the universe. It symbolizes the beginning and the end of all the things, and it is chanted during prayers when we offer something, when we pray, right? Or during meditations, right? So sometimes you even might have seen in Buddhism also. In Hinduism, obviously, we do have meditations and we do have chant mantras and we do have, prayers. We do offer our prayers to Lord Ganesha, Lord Vishnu, Lord Krishnji, Radharani, everyone, Shivji, Ma Parvati, Ma Shakti, Hanumanji. So we get to see similarly in Buddhism, in Christianity, in Muslim religion, everywhere. It's just the universe, it's the energy that is governing all of us. And that energy is the superpower, it's supreme, and it will never tell any human being to get divided. Instead, it will unite people. So that cosmic energy is the cosmic energy which is actually real in nature will never ever divide humans or animals. It will in fact ignite, it will ignite that spark
that spark of being together, the spark of enjoying together in that bliss, right? That God has given us. Then we do get to see the image. So we do have the image as well. So when we talk about the symbol of Om, the symbol is typically depicted as a stylized representation um, of the letters A, U, M, and M, accompanied by a crescent and a dot. So you do have a crescent like Shivji has. So that is the moon, uh, right? And with a dot, which again is, dot is something that is that might appear to be very small. Like we have the concept of science and we do have the concept of atoms and molecules. They are also very small, but herein dot is might look very small, might appear very small, but on the same um but at the same point of view, we do get to see that how it is uh, it is the thing that puts everything at its place, and which places, like for example, we have the full stop, so it ends everything. So when the sentence begins, it acts as a closure, right? So हिंदी में इसको पूर्ण विराम कहा जाता है, पूर्ण विराम लगता है हर सेंटेंस जैसे ही खत्म होता है, शुरुआत के बाद अंत आता है तो पूर्ण विराम से खत्म होता है। पूर्ण विराम मतलब इस चीज का अंत नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज का समाप्त करने में पूर्ण विराम या फुल स्टॉप हेल्प करता है। ठीक है। और AUM ये ऐसे नहीं बोला जाएगा, ये ऐसे बोला जाएगा अ लाइक यू हैव, हिंदी में हम बोलते हैं आ ई, राइट? इन इंग्लिश यू हैव ABCDEF, सो आ, so sound would be there, ऊ साउंड would be there, यू को ऊ बोलेंगे, है ना? इंग्लिश में भी जब आप देखते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड when you have a look at or glance at the consonants, or you know um, the vowel sounds, you get to see that कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, एक एक अल्फाबेट का, एक एक साउंड का। सो ऊ, और फिर एंड में सो इट्स लाइक that's the way how you do it. You see the kind of vibration that goes around in your head. It's that, it's the neurons working and going in and out, in and out, in and out, and plus your vocal cords. If you are a singer, you might have come across the same kind of situation wherein your vocal cords in this area, the thyroid gland, uh, if you do it will actually help your thyroid gland, right, to open up. Then after this we get we see that how, just give me a second, just, yeah, then we have am I audible? Yeah. So then we have the second one, which is swastika. As you can see, I have discussed about Om in the background. You can see Lord Ganesha, which is a pivotal figure, which is a quintessential figure, is there. He's there. So I just hope that he blesses all of us, all the human beings, all the creatures on this planet, all the plants, trees, everyone, with his blessings, mighty blessings, Lord Ganesha. And we have the symbol of Om, which I have discussed.
तो मैंने ओम के बारे में डिस्कस करा हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी हैं, लॉर्ड गणेशा जी हैं, जो हमारे सारे विघ्न हर लेते हैं, हमारे सारे हु इज यू नो हु who is the obstacle remover. So he eradicates all the obstacles from our path. He raises all the obstacles from our path. वो हमारे रास्ते के सारे अड़चने, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हर लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, जो कि आप जिनके ऊपर स्वास्थ्य आप देख सकते हैं अगेन कि स्वास्थ्य बना हुआ है। स्वास्थ्य के बीच में लॉर्ड गणेशा जी हैं और अंदर ओम है। तो अब हम स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे। स्वास्तिक का स्वास्तिक जो है वो एक सिंबल है फॉर गुड फॉर्च्यून। सो अगर आपको अच्छा फॉर्च्यून चाहिए अपने लिए, तो ये स्वास्तिक जो है वो एक बहुत ही स्वास्तिक का अर्थ ही होता है अच्छा अच्छा भाग्य होना, भाग्यशाली होना। सो अगर आपको अच्छा भाग्य बनाना है, अच्छा भाग्य चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो आप in order to have a good fortune, you should definitely make use of swastika, the symbol, that symbol, right? The symbol of swastika, which will give you prosperity, spirituality, which will take you um, if I talk about, which will basically uplift you and make you more spiritual, जो आपको ऊपर उठाएगी, अपने आप में ग्रोथ दिखाएगी और आपको एक बेहतरीन और अच्छा इंसान और स्पिरिचुअल इंसान, आपको आपके जो चक्रास हैं उनसे आपको अलाइन कराएगी और आपको दिखाएगी कि आपको कैसे बैलेंस मेंटेन करना है अपने चक्रास में, अपने काम सूद रहना है, काम रहना है, रिलैक्स्ड रहना है। और अगर कोई टेंशन की बात आती है तो उसके साथ कैसे टैकल करना है या कैसे डील करना है। फिर हम आएंगे हिंदुइज्म अगेन, क्योंकि हिंदुइज्म जैसा मुझे नहीं लगता है कि, मतलब ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। हर रिलीजन का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हिंदुइज्म एक बहुत ही गहरा समंदर है, जिसके समंदर, आसमान का समंदर भी और नीचे समंदर भी, क्योंकि आसमान में भी समंदर है और नीचे भी समंदर है। तो इतना विशेष रूप से बड़ा समुंदर है जिसके गहराइयां हम नाप ही नहीं सकते। वी कैन नॉट fathom the depth of the ocean, whether it is up in the sky or uh, down in the ocean or river. We cannot measure, right? It represents the sun. Swastika is representative of sun, right? So जब भी आप स्वास्तिका बनाते हैं, देखते हैं आपको वो स्वास्तिक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्वास्तिक आपको आप अगर आप स्वास्तिक सिंबल को, साइन को देखते हैं, तो वो सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सूर्य को रिप्रेजेंट करा जाता है स्वास्तिक के द्वारा, and is commonly used in rituals and ceremonies. And ये commonly स्वास्तिक symbol जो है वो यूज होता है रिचुअल्स में, सेरेमनीज में। फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली आने वाली है, तो ये दिवाली में रंगोली में यूज होता है। रंगोली में आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट यूज करते हैं स्वास्तिक का, लेकिन आप फ्लावर्स को रख सकते हैं और फ्लावर्स के ऊपर स्वास्तिक रखेंगे तो वो आपको, हाँ। वैसे मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी, स्वास्तिक बनाने का एक ढंग होता है। ये नहीं होता है कि आप यू नो जैसे आजकल मार्केट में मिलते हैं स्वास्तिक, वो बने बनाए मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है वो कैसे एग्जैक्टली बने हैं। स्वास्तिक को बनाने का एक करेक्ट वे होता है। उसी वे में आप अगर बनाएं तो वो बेहतर होगा। आपको अच्छे लाभ, शुभ लाभ तो वैसे ही नसीब में होगा ही होगा, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, अगर आपने किसी के बारे में कुछ गंदा नहीं बोला, अगर आप किसी के लिए खड्डे नहीं खोदते हैं, तो आपको वैसे ही अच्छे
क्या कहते हैं, अच्छे रूप से रिजल्ट्स, आउटकम्स, विशेष रूप से अच्छे ही चीजें मिलेंगी। लेकिन स्वास्तिक अगर बनना है तो आई गेस, मुझे उस बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन स्वास्तिक अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से बनाना चाहिए। उसका एक मेथड होता है, तो उसी रूप से, उसी वे से अगर आप बनाएं तो और लाभदायक होगा। वरना तो वैसे ही आप अगर आप शिकर्म कर रहे हैं तो अब लाभदायक तो वो है ही है। So the word swastika means conducive to well-being. So, uh, you know, um, it is conducive to well-being. So when one is thinking about one's well-being, one is thinking about prosperity, one is thinking about sun, one is thinking about, yes, good fortune. Swastika is the answer. Then we have, the image. It appears as a cross with arms bent at right angles, often drawn in clockwise direction. So it is often drawn in clockwise direction. जो कि अभी मैंने आपको इसी संदर्भ में आपसे बातचीत करी है, वार्तालाप किया है कि इसका सही दिशा में और सही रूप से बनाना होता है स्वास्तिक को। क्लॉक हमेशा आप याद रखिए कि ज्यादातर हिंदुइज्म में हम क्लॉकवाइज जाते हैं और हम राइट हैंड से हर चीज करते हैं। राइट हैंड से, फॉर इंस्टेंस हम प्रसाद भी राइट हैंड से लेते हैं, नीचे लेफ्ट हैंड रखते हैं, ऊपर राइट हैंड रखते हैं। तो हर चीज हम जब भी एंटर करते हैं, या हम मतलब हमेशा हर चीज राइट पैर से कहते हैं ये शुभ होता है। तो हमारे में ये कंसेप्ट होता है कि राइट से करो ऐसे। ये कुछ चीजें हैं, इनको कुछ लोग सुपरस्टिशन कहते हैं, लेकिन ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा एसेंस है। तो इससे हमें बिछड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी पहचान है बेसिकली। So I think that, and I guess that, we should never ever leave our real essence. We are the ones who would be creating, um, we are the ones who would be creating our destiny, but apart from it, we have collective consciousness. So we will be having an impact over others as well. So definitely, we need to do our level best in order to improve and improve ourselves daily on daily basis. At least one person we can improve, so that by we have 365 days most of the time. So leaving aside the leap year, so we have at least 360, we will find 365 ways in order to improve. So yeah, so it appears as a cross with arms bent at right angles. Right angles का again कुछ ना कुछ महत्व है हिंदुइज्म में, क्योंकि राइट एंगल का डायरेक्शन ये अगेन मैथ से रिलेटेड है। हमारा अगर आप देखें, सिंगिंग में आप देखें, क्लासिकल सिंगिंग में आपका गले का बहुत महत्व होता है। हर ऑर्गन का ही महत्व है हमारे हर चीज में। लेकिन अगर हम सितार बजाएं, अगर हम सिंगिंग करें, अगर हम डांसिंग करें, अगर हम भरतनाट्यम को ले लें एज एन एग्जाम्पल, पूरा मैथमेटिकल है, पॉस्चर सारे मैथमेटिकल वे में है। तो उसी तरह अब हम त्रिशूल की तरफ रुख करते हैं, मोड़ करते हैं। त्रिशूल जो है हम सभी जानते हैं किसका है। त्रिशूल जो है हमारे लॉर्ड शिव जी का है। तो त्रिशूल, या हम उसको ट्राइडेंट कहते हैं, ट्राइडेंट। सो त्रिशूल ऐसे हम शो कर सकते हैं। त्रिशूल अगर आपको दिख रहा है, ये त्रिशूल है, ट्राइडेंट। व्हाई आर वी कॉलिंग इट ट्राइडेंट? बिकॉज इसमें तीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो द त्रिशूल इज बेसिकली एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा एंड इट रिप्रेजेंट्स द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएशन। सो बेसिकली यू कांट डू दिस, right? This is not Trishul, this is Trishul.
राइट। अगर आप डांस के माध्यम से देखेंगे तो ये त्रिशूल होता है। तो त्रिशूल जो है उनके वो तीन एस्पेक्ट को दिखाते हैं। कौन से हैं वो तीन एस्पेक्ट? क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द क्रिएशन वन, सेकेंड वन इज द प्रिजर्वेशन वन एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रक्शन वन। इसको हम बुद्धिज्म से भी एसोसिएट कर सकते हैं, या हम उस कंसेप्ट से एसोसिएट कर सकते हैं जिसमें हम बातचीत करते हैं डिटैचमेंट की। राइट। इवन इन हिंदुइज्म वी टेंड टू टॉक अबाउट डिटैचमेंट, बट क्योंकि सब मोह माया है। डोंट वी से दैट कि सब मोह माया है, एवरीथिंग इज जस्ट गोना वैनिश, एवरीथिंग इज जस्ट गोना डिसअपियर, we are just here for a limited period of time, limited passage of time, and we are immortal beings. Sorry, we are mortal beings, we are not immortal beings. Right. So वो क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिएशन होता है, फिर प्रिजर्वेशन होता है, और फिर आखिर में डिस्ट्रक्शन हो ही जाना होता है। अगर आप कोई पेंटिंग कला, अगर आप कोई कलाकार हैं, कलाकार मतलब आप कोई सॉन्ग सॉन्ग नहीं, अगर आप कलाकार कोई भी हो सकते हैं, डांसर, सिंगर, या आर्टिस्ट। ठीक है। अगर मैं आर्टिस्ट का एग्जांपल ले लूं, पेंटर का एग्जांपल ले लूं, वो अपना पेंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको हटाते हैं। या सैंड पेंटिंग ले लो, वो सैंड पेंट से बनाते हैं, फिगर्स ड्रॉ करते हैं, कुछ करते हैं, फिर उसके बाद वो सैंड हटा देते हैं। या आप बुद्धिस्ट मंक्स का ले लो, वो क्या वो कुछ बनाते हैं, एग्जैक्ट मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन वो कुछ बनाते हैं और उसके बाद उनके वो कुछ डेज होते हैं, उसके बाद वो पूरा इतना इंट्रिकेटली कार्व करते हैं, कार्व मतलब वो बनाते हैं, और उसके बनाने के बाद वो उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये अगेन डिटैचमेंट का भी एक हम विषय से कनेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन कनेक्ट इट विद डिटैचमेंट issue also, right? So it symbolizes the balance of these forces in the universe. So how there is supposed to be the balance between, between uh, between creation, between preservation, and between the destruction, right? So there's supposed to be a balance. So one takes birth on if we talk about our mother earth, one takes birth on this earth, then one is an infant, and then when grows up, when one becomes a child and an adolescent, then an adult, then a middle-aged person, then an old person, then one goes from um, this womb, that is our mother earth, to another, might be going to another realm, we don't know, right? But we aren't sure. But obviously the soul transcends beyond boundaries and can transcend beyond time and space, right? And time and space isn't limited to only आर मदर अर्थ। टाइम और स्पेस जो है वो सिर्फ मदर अर्थ। आप क्या सोचते हैं, जैसे हमारा इंडिया का टाइम अलग है, यूएस कनाडा का टाइम अलग है, लंदन का टाइम अलग है, ऐसे ही हर देश का टाइम अलग है। तो क्या आप सोचते हैं कि हमारी धरती में हम जब नासा वगैरह ये सब बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया, हम कहते नहीं है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फिर ये स्टैंडर्ड, कनाडा स्टैंडर्ड टाइम, पता नहीं क्या क्या, ये जितने भी होते हैं, ठीक है, यू नो ये मेरिडियन, वो मेरिडियन, ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो लाइन ऑफ ये सो ये सब हम लाइन ऑफ या इक्वेटर पढ़ते हैं। तो जो डिवाइड करते हैं, ये तो हमें बहुत लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन हम इस गैलेक्सी में अगर हम देखेंगे तो मार्स का अलग टाइमिंग है, वो अलग तरह से रिवॉल्व करता है। मर्क्यूरी अलग टाइमिंग है,
वीनस अलग टाइमिंग है, मार्स अलग टाइमिंग है, जुपिटर अलग टाइमिंग है, सैटर्न अलग टाइमिंग है, यूरेनियस अलग टाइमिंग है, नेपट्टून अलग टाइमिंग है, और प्लूटो को कभी वो घोषित करते हैं कि वो प्लैनेट है, कभी वो घोषित करते हैं कि नहीं है, कभी कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट है। पर प्लैनेट फिर कुछ अभी क्लियर क्लैरिटी है नहीं साइंस में, या मैं साइंस कहूँ या सोशल कहूँ, अभी के टाइम में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हमारे ग्रंथों में सारा कुछ क्लियर था। हमारे एस्ट्रोलॉजी जो साइंस था, जो रियल वेदास थे, जो रियल ग्रंथ हैं हमारे, जो रियल उपनिषद्स हैं, उन सब में हर चीज में लॉजिक और साइंस है, मंत्रों में साइंस है। लेकिन कोई इस बात को यू नो आगे नहीं बढ़ाता, ये सोच के कि नहीं मेरा अपर हैंड होगा, मेरा अपर हैंड होगा, मैं चुपके से आगे बढ़ जाऊंगा या चुपके से आगे बढ़ जाऊंगी, मैं सक्सीड। इतनी कंपटीशन हो गई है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, नहीं मुझे इस रैट रेस में, रैट ट्रैप बन के रह गया है। रैट रेस में तुम रैट ट्रैप के अंदर घुसे जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं रियलाइज हो रहा है, किसी को भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम आखिर में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नाम की चीज है, जिससे हम सब कनेक्टेड हैं आपस में। चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे हम प्लांट्स के साथ कनेक्टेड हो, चाहे हम एनिमल्स के साथ कनेक्टेड हो, चाहे हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिमोट, सेल फोन, कुछ भी हो, अ, हम हर एक चीज के साथ कनेक्टेड हैं। और ये मतलब नहीं है अब वाईफाई है उसका, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे, ये उदाहरण के तौर पे ये लेना चाहूंगी कि वाईफाई का जो वो होता है, क्या वो दिखता है? नहीं हो दिखता। लोग कहते हैं कि ये चीज नहीं होती, वो चीज नहीं होती। साइंस में कई चीजें नहीं दिखती हैं। क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखता है? नहीं दिखता। आप जब बल्ब का वो बटन दबाते हैं, जिससे स्विच स्विच दबाते हैं, प्रेस करते हैं, व्हेन यू जस्ट प्रेस द बटन और स्विच, आपको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है? आपको दिखता है? नहीं दिखता है। वो ऑटोमेटिकली बल्ब चल पड़ता है, इट जस्ट गेट्स ऑन, राइट? आपको वाईफाई का कैसे होता है? वाईफाई कैसे चल रहा है? वायरलेस है, कैसे हो रहा है? राउटर है बस, बाकी सब कैसे चल रहा है? तो यही इसी धारणा पे हम, जो लोग कहते हैं कि दुनिया कैसे बनी है, दुनिया तो बन ऐसे ही बस साइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और ये और वो, इन सब चीजों से बनी है। अरे कम आउट माय डियर, कम ऑन, डोंट बी so at least if you don't be so, um don't try to act so, I wouldn't say over smart, but don't try to act in a clever way. Either you are clever or you are ignorant. What should I say? So yeah. Then it is depicted as a three pronged. When we talk about Trishula or trident, it is a um, three pronged spear, right? Often held by Shiva in serious artworks. So it is often held by Shiva in serious artworks. So serious art, you must have noticed serious artworks, जब उनका सीरियस लहजा या सीरियस आउटलुक या सीरियस इमोशंस दिखाने होते हैं, तो त्रिशूल यूज करते हैं, या एग्रेसिव दिखाना होता है। ठीक है। और ऐसे ही हमारा लोटस फ्लावर आता है। तो लोटस फ्लावर जो है वो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अगेन बहुत ही विशेष रूप से बहुत ही हमारे लिए महत्व रखता है। लोटस फ्लावर का क्या सिंबलाइज करता है? प्योरिटी सिंबलाइज करता है, ब्यूटी सिंबलाइज करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिंबलाइज करता है ना? हम जब भी कोई ब्यूटीफुल लगता है या हैंडसम लगता है, हम क्या देते हैं? फ्लावर्स देते हैं, बुके देते हैं, है ना?
एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, एंड एज अ मार्क ऑफ कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, है ना, या बहुत हैंडसम लग रहे हो। ऐसे ही लोटस जो सिंबलाइज करता है प्योरिटी। प्योरिटी कैसे? क्योंकि वो कीचड़ में भी हमें लोटस से सबक भी सीखना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस भी हैं जो हमें लोटस से, we can actually grasp those messages, we can actually learn from those messages, जो हमें सिखाते हैं लोटस फ्लावर्स। वो ये है कि कीचड़ में भी कैसे अपनी सुंदरता को बरकरार रखना है। कीचड़ में भी जब तुम्हारे आसपास सारी गंदगी है, कीचड़ है, तभी भी तुम कितने खूबसूरत तरह से उग रहे हो, और बाकी सारे और भी तुम्हारे आसपास लोटस उग रहे हैं। तो यानी कि ब्यूटी सराउंड्स, ब्यूटी इज एवरीवेयर, uh, so a thing of beauty is a joy forever. That reminds me of that. If you know that, what I mean, come in the comment section below and do let me know. अगर आपको ये चीज से को मालूम है तो आप जरूर विशेष रूप से कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, तो so the lotus symbolizes purity, beauty and spiritual awakening. Also it symbolizes spiritual awakening, क्योंकि माँ, आपने माँ को भी देखा होगा कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को देखा होगा, वो लोटस फ्लावर पे बैठते हैं। पेटल्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लोटस के। is often associated with various deities including Ma Lakshmi and Saraswati, representing divine beauty and enlightenment. So they actually represent divine beauty and they represent divine enlightenment. So they not only represent beauty, but they also represent the enlightenment. So when we talk about beauty, beauty is not only limited to the physical beauty. Beauty is, beauty that lies in your heart. Beauty is also about the uh, the intellect, right? Because माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी है, जो स्वच्छ जगह, सुंदर सौंदर्य वाली जगह पे जाके प्रवास करती हैं, और माँ सरस्वती हैं जहाँ विद्या का दान प्रदान होता है। जैसे मैं गुरु हूँ, मैं तो अभी वैसे गुरु तो मेरे पीछे ही हैं जो मुझे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिनके थ्रू मैं बोल रही हूँ। मैं जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गुरु हूँ, तो मैं जो दान दूंगी या प्रदान करूंगी, और आप मुझे जो दान कमेंट्स के थ्रू मुझे दान प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे, न दान नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो आप मुझे ज्ञान प्रदान करेंगे, और मैं जो आपको ज्ञान प्रदान करूंगी, हमारा एक तरह से एक्सचेंज होगा ज्ञान, है ना। तो वही रिप्रेजेंट करता है कि कैसे लोटस जो है वो ब्यूटी भी रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो एनलाइटनमेंट भी रिप्रेजेंट करता है ना। इमेज जो है, जैसे इमेज है लोटस, लोटस इज डिपिक्टेड एज अ फ्लावर ब्लूमिंग अबव द वाटर, सिंबलाइजिंग राइजिंग above worldly attachments. So there are a lot of materialistic worldly attachments that we are basically addicted to, which we shouldn't be. So for example, most of the people are addicted to iPhones or iPads or MacBooks, or televisions, television and cell phones, so on and so forth. um, तो वो एक तरह से वर्ल्डली अटैचमेंट से राइज करना अबव, जब आप अपलिफ्ट कर लेते हो अपनी सोल, अपनी अंतरात्मा को ऊपर उठा लेते हैं, जब अपने अपनी सोच को ऊपर उठा लेते हैं, आप सोच पाते हैं मन के भीतर और तन में और मन के बाहर भी, कि कि हर चीज का अपना अपना महत्व होता है, और हर प्राणी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमें हर प्राणी से सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि हम सोचते हैं कि चलो ये इंसान हमें पसंद नहीं करता, ये गंदा है, ये वो है, ये वो है, ये है। ऐसे ऐसे कई बार आ जाते हैं मन में, है ना, विचार।
पर हमें हर प्राणी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, चाहे वो गंदा हो चाहे वो अच्छा हो। हमें बस सबक लेना है, हमें बस सीखना है। हाँ, वो लाइफ जो है हमारी टीचर है, लाइफ जो है हमारी गुरु है, और हमें उससे सबक लेने हैं, सीखना है। जितना हम सीखेंगे, जितना हम अपने आप को बेहतर करेंगे, शार्पन करेंगे, बेहतरीन बनाएंगे, उतना बेहतर हमारा कल होगा, उतना बेहतर हमारा जीवन होगा, उतना सरल जीवन होगा हमारा, है ना। फिर हमारे गणेशा आते हैं। गणेशा, लॉर्ड गणेशा इज द लॉर्ड गणेशा, द एलिफेंट हेडेड गॉड, इज नोन एज द remover of the obstacles and the god of beginnings. So before anything, we actually have to pray to God, Lord Ganesha. कुछ भी कार्य संपन्न करने से पहले हमें लॉर्ड गणेशा जी की आरती करनी होती है, हमें उनको पूजना होता है, हमें अच्छे विचारों के साथ, उनकी सम्मान के साथ, उनके आदर के साथ उनका सम्मान करना होता है, हमें उनको पूजना होता है। ये उनको प्राप्त भी हुई थी। अगर मैं बोलूं तो ये स्पेशल प्रिविलेज उनको प्राप्त हुई थी। सो ही इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव हिम। तो he is worshipped at the start of new ventures and is associated with intellect and wisdom. So जब भी कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आई है, वो स्टार्ट करनी है, कोई नई कार खरीदी है, नया घर खरीदा है, नया टीवी खरीदा है, नया फोन खरीदा है, कुछ भी नया खरीदा है, तो सबसे पहले किसको पूछते हैं? गणेश जी को पूछते हैं। दिवाली पे भी सबसे पहले गणेश जी और माँ लक्ष्मी। तो ऐसे हमें गणेश जी को सबसे पहले हर आरती में, हर पूजा में सबसे पहले हम गणेश जी का आगमन करते हैं, पूजते हैं। इमेज अगर की मैं बात करूं, और और हमेशा लॉर्ड गणेशा जी की जब हम बात करते हैं तो ये विजडम और इंटेलेक्ट से कनेक्टेड है। सो अगर आपको विजडम चाहिए, अगर आपको इंटेलेक्ट चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मेरे चैनल का नेम ही आई हैव सिलेक्टेड विजडम एरा, सो आई होप लॉर्ड गणेशा जी प्रोवाइड्स मी विद a lot of wisdom and with a lot of intellect. Ganesha ji is often depicted with large head, small by a small body, and multiple arms holding various symbolic items. So symbolic, उनका large head है, ठीक है। गणेश जी का स्मॉल बॉडी है एंड मल्टीपल आर्म्स हैं। मल्टीपल आर्म्स हर एक के आप देखेंगे, अगर हमारे देवी देवताओं के, तो हमेशा मल्टीपल आर्म्स दिखाए गए हैं। आप उनको ये भी कह सकते हैं मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, या मल्टीटास्कर भी कह सकते हैं हम, जो आजकल हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। मतलब उनके आर्म्स में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं कि वो एक तरफ सॉफ्ट है, एक तरफ उनको पता है कि किससे कैसे जगह दिखानी है। एक तरफ वो सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, और एक तरफ वो एग्रेसिव हैं और शेर हैं, है ना, ऐसे। तो सिंबॉलिक हैं वो आइटम्स जो उन्होंने पकड़े हुए हैं। और फिर हमारे पास एडिशनल सिंबल्स आ जाते हैं, जैसे कि banyan ट्री, जो रिप्रेजेंट करता है interconnectedness of life and the eternal nature of the soul. So banyan tree, जो कि वात कहते हैं जिसको, तो banyan tree से हमें वात का होता है। तो it represents the interconnectedness of life, कि कैसे लाइफ इंटरकनेक्टेड है इटर्नल नेचर ऑफ द सोल से। सो इटर्नल नेचर है जो बाहर का भी है, और हमारे अंदर भी इटर्नल नेचर है, और जो बाहर है वो भी इटर्नल नेचर है। और फिर शिवलिंग आता है, ठीक है, फिर शिवलिंग आता है। शिवलिंग की यदि हम बात करें तो वो सिंबलाइज करता है एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ द गॉड शिवा, रिप्रेजेंटिंग क्रिएशन एंड रीजनरेशन। These symbols are not only integral to Hindu worship and rituals, but also serve as a means of conveying complex spiritual concepts in a visual form. Each symbol carries layers of meaning, reflecting the rich tapestry of beliefs and practices within Hinduism. Uh, for example, Shivalinga is depicted as this, right? This is how you would depict Shivalinga.
So it symbolizes the energy and potential of God Shiva. The moment you will do this, you will feel a kind of energy that stimulates, that comes, that goes around, or that moves around in your body, right? So these symbols are not only integral to Hindu worship and rituals, but they sort of, but also they serve as a means of conveying the complicated spiritual concepts in a visual form. So this is a visual form of it. Each symbol is carrying obviously multiple layers, so which I've spoken before, that it portrays the rich tapestry of Hinduism, right? Of beliefs, of practices in Hinduism or within Hinduism, right? So, with this, I would love to end this series. I would love to basically come to the end of this session. And this is Sukriti Joshi signing off. Till then, let's all keep learning. Till then, let's all keep growing. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna, Namaste. तब तक हम सभी ज्ञान दें, ज्ञान लें और खूब खुशियों से हमारा स्वागत होता रहे। हम सदा खुश रहें, सदा ठीक रहें, सदा ही ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।